کیا دنیا ایک بار پھر ایٹمی جنگ کے دہانے سے واپس مڑنے والی ہے یا پھر یہ کسی ہولناک طوفان سے پہلے کا سناٹا ہے؟ ناظرین، اسلام آباد اس وقت دنیا کا سب سے اہم ترین مقام بن چکا ہے۔ پوری دنیا کے اہم فیصلے اب یہاں ہو رہے ہیں، کیونکہ ایران اور امریکہ کے درمیان زندگی اور موت کا فیصلہ اب اسی سرزمین پر ہونے جا رہا ہے۔ ایسے میں ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ایسا پینڈورا باکس کھول دیا ہے جس نے پینٹاگون سے لے کر تہران تک ہلچل مچا دی ہے۔ سینئر صحافی حامد میر کے تہلکہ خیز انکشافات نے ثابت کر دیا ہے کہ ٹرمپ صرف مذاکرات نہیں چاہتے، وہ پاکستان کی زمین پر کھڑے ہو کر ایک تیر سے دو شکار کرنا چاہتے ہیں۔ مگر کیا یہ سب اتنا آسان ہے؟ ایک طرف آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی ہے اور دوسری طرف تہران کا وہ دو ٹوک مطالبہ جس نے امریکی صدر کے ہوش اڑا دیے ہیں۔ کیا ٹرمپ نیتن یاہو کی ڈکٹیشن مسترد کر پائیں گے؟ امریکہ ایران جنگ کے مذاکرات کا فائنل راؤنڈ پاکستان میں ہی ہوگا۔ پاکستان ایک بار پھر عالمی توجہ کا مرکز بن گیا ہے۔ ایران کے خلاف جنگ ختم ہونے والی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے بڑی خبر سنا دی ہے۔ ادھر پاکستان کی ایران اور امریکہ کو مذاکرات کے دوسرے دور کی پیشکش، سفارتی کوششیں مزید تیز ہو گئی ہیں۔ آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی شروع کر دی، اگلا نمبر کیوبا کا ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا خطرناک پلان کیا ہے؟ ادھر پاکستان کی ایران اور امریکہ کو مذاکرات کے دوسرے دور کی پیشکش، سفارتی کوششیں مزید تیز ہو گئی ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان مشرق وسطیٰ کا دورہ کر رہے ہیں اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ایران پہنچ چکے ہیں۔ اور یہاں پر آپ کو یہ بھی بتائیں کہ آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی شروع کر دی ہے، اگلا نمبر کیوبا کا ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا خطرناک پلان کیا ہے؟ اس ولاگ میں تمام حقائق آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز ڈیجیٹل اور میں ہوں محمد اسحاق۔ ناظرین، امریکہ اور ایران کے درمیان امن مذاکرات دوبارہ شروع ہونے کے امکانات بڑھ گئے ہیں، جبکہ پاکستان ایک بار پھر اس عمل میں مرکزی سفارتی کردار ادا کرتا دکھائی دے رہا ہے۔ یہ پیش رفت مختلف عالمی خبر رساں اداروں، رائٹرز، بلومبرگ اور ایسوسی ایٹڈ پریس کی رپورٹس میں سامنے آئی ہے۔ رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں دوبارہ انعقاد کے امکانات موجود ہیں اور وفود اسلام آباد پہنچ سکتے ہیں۔ پاکستان کا اعلیٰ سطح کا وفد فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے ہمراہ ایران گیا، جہاں پر امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کے سلسلے میں بات چیت ہوئی۔ ISPR کا کہنا ہے کہ فیلڈ مارشل کا دورہ ایران امریکہ جاری ثالثی کی کوششوں کا حصہ ہے۔ یہ دورہ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ اس سے پہلے ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے بتایا تھا کہ پاکستان کے ذریعے امریکہ سے پیغامات کا تبادلہ کیا جا رہا ہے اور مذاکرات کے تسلسل میں ایران آج پاکستانی وفد کی میزبانی کرے گا۔ دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف اعلیٰ سطح کے وفد کے ساتھ سعودی عرب کا دورہ کر رہے ہیں۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار، وزیر اطلاعات و نشریات عطا تارڑ، وزیر اعظم کے معاون خصوصی سید طارق فاطمی اور وزیر اعظم کے ترجمان برائے غیر ملکی میڈیا مشرف زیدی بھی وزیر اعظم کے ہمراہ تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے دو طرفہ ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں پاکستان اور سعودی عرب کے مابین دو طرفہ تعلقات کے مزید فروغ اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ علاقائی امن و سلامتی پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ بات چیت کے حوالے سے پاکستان کو ترجیحی مقام قرار دیتے ہوئے اندیا دیا ہے کہ مذاکرات کا اگلا دور بھی پاکستان میں ہو سکتا ہے۔ ٹرمپ نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ایران امریکہ ثالثی کے حوالے سے کوششوں کو پاکستان کے انتخاب کی وجہ قرار دیا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی اخبار نیو یارک پوسٹ کو دیے گئے انٹرویو میں کہا ہے کہ ایران سے بات چیت کے حوالے سے اہم پیش رفت متوقع ہے اور مذاکرات جلد دوبارہ شروع ہو سکتے ہیں اور یہ مذاکرات بھی پاکستان میں دوبارہ ہو سکتے ہیں۔ ایران سے بات چیت کے حوالے سے جلد پیش رفت متوقع ہے اور مذاکرات کے دوبارہ آغاز کا امکان موجود ہے۔ اس سے پہلے نیو یارک پوسٹ کو ہی انٹرویو میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ ایران کے ساتھ پس پردہ پیش رفت جاری ہے، تاہم اس کی رفتار سست ہے۔ صدر ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ امریکہ ترکی کو زیر غور نہیں لا رہا بلکہ زیادہ کسی اور مقام پر غور کر رہا ہے اور اس میں یورپ بھی شامل ہے۔ اس گفتگو کے بعد صدر ٹرمپ نے صحافی سے دوبارہ رابطہ کرتے ہوئے کہا کہ ایران سے بات چیت آئندہ 2 دن میں پاکستان میں بھی ہو سکتی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی صحافی کو متوجہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ کو وہی رہنا چاہیے
क्योंकि अगले 2 दिन में कुछ हो सकता है और हम पाकिस्तान की तरफ ज्यादा माइल हैं। सदर ट्रंप का ईरान से मुज़ाकरात के मामले पर मजीद कहना था कि हम किसी ऐसे मुल्क क्यों जाएं जिसका इस मामले से कोई ताल्लुक ही ना हो। सदर ट्रंप ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की खुसूसी तारीफ करते हुए कहा कि वो शानदार आदमी हैं, इसीलिए ऐन मुमकिन है कि हम दोबारा वहां जाएं। पाकिस्तान में मुज़ाकरात के इम्कानात इसलिए ज्यादा हैं क्योंकि फील्ड मार्शल इस मामले में बेहतरीन काम कर रहे हैं। इससे कबल अमरीकी सदर ने यूरोपीय ममालिक के किरदार पर भी तनकीद करते हुए कहा था कि वो अपना हुर्मज़ की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए अमली इक़दामात की बजाय सिर्फ इजलासों तक महदूद हैं। ये पेशरफ्त ऐसे वक्त सामने आई है जब दोनों ममालिक के दरमियान तनाज़ा कम करने के लिए आलमी सतह पर कोशिशें जारी हैं, जिसमें खास तौर पर पाकिस्तान पेश है। सदर ट्रंप के हालिया बयान से जाहिर होता है कि अमरीका और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी के बावजूद सिफारती सतह पर राबते बहाल करने की कोशिशें अब भी जारी हैं और पाकिस्तान मुमकिना तौर पर दोबारा मुज़ाकरात के अगले दौर की मेज़बानी कर सकता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ जारी जंग को इख्तिताम के करीब करार देते हुए इंदिया दिया है कि जल्द ही अमन मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो सकते हैं। तहम साथ ही उन्होंने खबरदार किया कि अमेरिका की कार्रवाइयाँ अभी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुई। अमेरिकी न्यूज़ चैनल को दिए गए इंटरव्यू में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मेरा ख्याल है कि जंग तकरीबन ख़त्म होने वाली है, मैं इसे इख्तिताम के बहुत करीब समझता हूँ। सदर ट्रंप का ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब इतलात के मुताबिक अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात जो गुज़श्ता हफ्ते पाकिस्तान में तातुल का शिकार हो गए थे, जो अब जुमेरात को दोबारा शुरू होने का इम्कान है। पीर के रोज़ से अमरीका ने ईरानी बंदरगाहों की मुकम्मल बहरी नाकाबंदी नाफिज कर दी है, जो तनाज़े में एक नई शिद्दत का इशारा है, ख़ास तौर पर उसके बाद जब अमरीका गुज़श्ता हफ्ते ईरान पर बमबारी रोकने पर आमादा हुआ था। दूसरी जानिब फॉक्स न्यूज़ के मुताबिक सदर ट्रंप ने बताया कि अमेरिका और इसराइल के ईरान के साथ जंग ख़त्म हो चुकी है, जो मेरे उस मौक़िफ़ से किसी हद तक मुतसादिम दिखाई देता है जिसमें वो ईरान की शराइत ना मानने पर जंग दोबारा शुरू करने की धमकी देते रहे हैं। सदर ट्रंप ने एक बार फिर कहा कि अगर अमेरिका ने ईरान के खिलाफ कार्रवाई ना की होती तो आज ईरान जौहरी हथियार का हामिल होता और इस सूरत में आलमी ताकतों को ईरान के सामने झुकना पड़ता। जंग जल्द ख़त्म हो सकती है, तहम अमेरिका की कार्रवाइयाँ अभी मुकम्मल नहीं हुई और आइंदा सूरत हाल का इन्हिसार ईरान के रवैये पर होगा। सदर ट्रंप ने वाज़ेह किया कि अमेरिका की कार्रवाइयाँ अभी मुकम्मल नहीं हुई हैं। अगर अमेरिका इस मरहले पर पीछे हट जाए तो ईरान को अपनी तबाहशुदा सूरत हाल से निकलने में 20 साल लग सकते हैं। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हामिद मीर ने इंकशाफ किया है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की ख्वाहिश है कि वो ईरान के साथ मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान आएँ, लेकिन उन्होंने इस्लामाबाद आने के लिए एक शर्त भी रखी है। ईरान और अमेरिका के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात में सिवाय एक चीज़ के तकरीबन तमाम निकात पर इत्तिफ़ाक़ राय हो गया था। एक चीज़ जिस पर ईरान ने कहा था कि हमने इस पर किसी किस्म का समझौता नहीं करना और कोई लचक नहीं दिखानी। ईरान ने कहा कि हम लिबनान में सीज़ फायर तक अमेरिका के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। ईरान के साथ मुज़ाकरात के लिए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खुद पाकिस्तान आने की खबरों से मुतालिक सवाल पर हामिद मीर ने कहा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की ये ख्वाहिश ज़रूर है और ये बात हम तक चीनी सिफारती ज़राए से पहुँची है और अमेरिका और ईरान के दरमियान जो बातचीत चल रही है उसमें बहुत से बैनुल-अक़वामी मुआहदे भी शामिल हैं और बैनुल-अक़वामी माहिरीन इन मुआहदों को सामने रखकर मुआहदों का ड्राफ्ट तैयार करते हैं और ऐसे बहुत से माहिरीन अमेरिका, ईरान और दीगर स्टेक होल्डर्स की तरफ से पाकिस्तान में मौजूद हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ मुज़ाकरात के अलावा एक और छक्का मारने की कोशिश भी कर रहे हैं और वो शिमाली कोरिया के साथ मुआहदा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने 14 मई को चीन जाना है। सिफारती ज़राए ने कहा है कि चीन ने अमेरिकी सदर से कहा है कि आपने दौरा चीन से कबल ईरान के साथ मामला निपटाना है, तो इस लिहाज से उनके पास अप्रैल का महीना है। तो अगर अमेरिका और ईरान के दरमियान मामला तय पा जाते हैं तो फिर चीन, अमेरिका और शिमाली कोरिया के दरमियान भी किसी डील की कोशिश कर सकता है। सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर मज़ीद बताते हैं कि ईरान के मुतालबे पर नायब सदर JD वैंस ने सदर डोनाल्ड ट्रंप से बात की है और अमरीकी ज़राए से जो बात मुझ तक पहुंची है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप बड़े हैरान हुए कि ईरान ने यूरेनियम ना रखने पर रज़ामंदी ज़ाहिर की और ईरान अपने हुर्मज़ पर भी लचक दिखाने के लिए तैयार है। तो उस पर नायब सदर ने कहा, जी मिस्टर प्रेसिडेंट, इस पर भी ईरान तैयार है। इसके बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान मुज़ाकरात के लिए आने के लिए ये शर्त रखी है कि ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान भी पाकिस्तान आएँ। हामिद मीर का कहना है, लेबनान वाला मामला बहुत हसास है और किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे,
लेकिन मैं ये समझता हूं कि इस वक्त अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप नहीं नेतन्याहू हैं और डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए कि वो अपने एक्शन के साथ साबित करें कि वो अमेरिका के सदर हैं और वो नेतन्याहू से डिक्टेशन नहीं लेते। नेतन्याहू ने तो बहुत खुलकर कहा है कि अमेरिकी मुझे इस्लामाबाद मुज़ाकरात के हवाले से रिपोर्ट कर रहे थे और वाशिंगटन में जो लेबनान के हवाले से मुज़ाकरात हो रहे हैं उन्हें हिजबुल्लाह ने मुस्तरद कर दिया है, जबकि लेबनान हुकूमत में हिजबुल्लाह के पास 2 वजारतें मौजूद हैं और इसराइल की कोशिश है कि लेबनान में मसले की इख्तलाफात पैदा किए जाएं और ये तासुर दिया जाए कि हम हिजबुल्लाह को कुछ समझते ही नहीं हैं। इसलिए इस मामले पर डोनाल्ड ट्रंप को कोई एक्शन लेना होगा और उन्हें नेतन्याहू को बताना होगा कि मैं आपसे डिक्टेशन लेने के लिए तैयार नहीं हूं। पाकिस्तान की ईरान और अमेरिका को मुज़ाकरात के दूसरे दौर की पेशकश, सिफारती कोशिशें तेज़ हो गई हैं। नाजरीन, पाकिस्तान ने एक बार फिर आलमी अमन के लिए बड़ा कदम उठाते हुए अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के दूसरे दौर की मेज़बानी की पेशकश कर दी है। अमेरिकी न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी हुकाम ने तजवीज़ दी है कि जंग बंदी की मुद्दत ख़त्म होने से पहले इस्लामाबाद में दोबारा दोनों फ़रीक़ैन को मेज़ पर बिठाया जाए। अगरचा पहले दौर में कोई हतमी मुआहिदा नहीं हो सका था, लेकिन पसे पर्दा राबते अब भी जारी हैं और माहिरीन का ख्याल है कि इस बार मामलात किसी मंतकी नतीजे तक पहुँच सकते हैं। अमेरिकी एजेंसी ने ज़राए के हवाले से बताया कि मुज़ाकरात के इस अमल में सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि तुर्की और मिस्र जैसे ममालिक भी सालिसी का किरदार अदा कर रहे हैं। इस्लामाबाद में होने वाले पहले मुज़ाकरात के दौरान कई अहम मसाइल हल के करीब पहुँच चुके थे और एक मुश्तरका फ्रेमवर्क का ऐलान भी होने वाला था, मगर फिर अचानक अमेरिकी वफ़द ने वहाँ से रुखसती का फैसला कर लिया। अब सूरत हाल ये है कि अमेरिका और ईरान दोनों ही नहीं चाहते कि दोबारा जंग शुरू हो, इसलिए दोनों जानिब से खूनी बाब को हमेशा के लिए बंद करने की ख्वाहिश मौजूद है। रॉयटर्स और एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट्स बताती हैं कि वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान पैगामात का तबादला अब भी जारी है और पाकिस्तान इसमें एक पुल का किरदार अदा कर रहा है। एक अमेरिकी ओहदेदार ने सदर ट्रंप के इस बयान का हवाला दिया कि ईरान ने राब्ता किया है और वो डील करना चाहते हैं। अमेरिकी ओहदेदार का कहना है कि दोनों ममालिक के दरमियान मुसलसल राबता है और मुआहदे तक पहुँचने के लिए मामलात मुस्बत समत में आगे बढ़ रहे हैं। रिपोर्ट में सिफारती ज़राए के हवाले से बताया गया कि दोनों फ़रीक़ैन इस वक्त आमने सामने बैठकर बात करने पर गौर कर रहे हैं ताकि 6 हफ्तों से जारी इस जंग को ख़त्म किया जा सके। दुनिया भर की नज़रें अब दोबारा पाकिस्तान की तरफ लगी हुई हैं कि क्या इस्लामाबाद की ये कोशिश खित्ते को एक बड़ी तबाही से बचाने में कामयाब हो पाएगी या नहीं। आपने हुर्मज़ की नाकाबंदी शुरू कर दी, अगला नंबर क्यूबा का होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप नया प्लान मंजर आम पर ले आए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान में होने वाले मुज़ाकरात के बाद ईरान ने अमेरिका से राबता किया है और वो किसी भी कीमत पर मुआहिदा तय करने की शदीद ख्वाहिश रखता है। व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए अमेरिकी सदर ट्रंप ने दावा किया कि तेहरान की जानिब से मौसूल होने वाले पैगामात से ज़ाहिर होता है कि वो एक नई डील के लिए बेताब हैं। साबिका मुज़ाकरात में बहुत सी बातों पर समझौता हो चुका था और अमेरिकी वफ़द ने बेहतर अंदाज में बातचीत की, ताहम ईरान के रवैये और यूरेनियम के मामले पर इत्तेफाक होने की वजह से डेडलॉक पैदा हुआ। सदर ट्रंप ने दो टोक अल्फाज में वाज़े किया कि ईरान को किसी सूरत जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और अमेरिका किसी भी मुल्क की ब्लैकमेलिंग कबूल नहीं करेगा। आपने हुर्मज़ का जिक्र करते हुए ट्रंप का कहना था कि दुनिया को इसकी ज़रूरत है और वहाँ नाकाबंदी कर दी गई है। मुतादिद तेल बरदार बहरी जहाज़ अमेरिका के लिए तेल लेकर आ रहे हैं और अगरचा कई ममालिक ने ईरान की नाकाबंदी में मदद की पेशकश की है, लेकिन अमेरिका को इस काम के लिए किसी की मदद की ज़रूरत नहीं। इस मौका पर सदर ट्रंप ने एक नई धमकी देते हुए कहा कि ईरान के बाद अब क्यूबा की बारी है। डोनाल्ड ट्रंप ने क्यूबा को एक नाकाम रियासत करार देते हुए कहा कि वहाँ के अवाम और ख़ास तौर पर क्यूबा अमेरिकन के साथ बहुत बुरा सलूक किया गया है, जिसका अब हिसाब लिया जाएगा। नाज़रीन, सूरत हाल अब नहीं तो कभी नहीं वाले मरहले में दाखिल हो चुकी है। एक तरफ अप्रैल की वो डेडलाइन है जो चीन ने ट्रंप के सामने रखी है और दूसरी तरफ लेबनान का वो सुलगता हुआ मसला जो इस पूरी डील को राख का ढेर बना सकता है। पाकिस्तान ने दोबारा सालिसी की पेशकश की है, मुज़ाकरात की मेज़ सज चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सिफारतकारी ने दुनिया को हैरान कर दिया है, मगर असल सवाल यह है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप में इतनी हिम्मत है कि वो इसराइल के झांसे से निकलकर एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार सदर के तौर पर तारीख रकम करें, या फिर क्यूबा और ईरान की नाकाबंदियाँ आलमी मईशत का गला घोंट देंगी। नाजरीन, ये सिर्फ दो मुल्कों की जंग नहीं, ये आलमी निज़ाम के लिए नक्शे की तैयारी है। आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप और सदर पेज़ेश्कियान इस्लामाबाद में एक मेज़ पर बैठेंगे या फिर बारूद की ये बू पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले लेगी? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगली अपडेट्स तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।